उन्होंने आते ही ये लफ्ज़ उठाया कि भाई तू कौन है, सुनील जी से मत बात कर। अब हमें नहीं पता कि वो उस मौका वारदात पे कहाँ से आए, क्योंकि हम पर उतने में ये बोलता तू बोल कैसे रहा है, मैं अभी बंदे बुलाऊं क्या। बहुत मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो 10 से 15 की तादाद में बंदों को लेके आ गया। दीपक पॉसिबल नहीं है किसी आम आदमी के लिए, ये गुंडाई कर सकता है कोई, ठीक है। सारा झगड़ा वो मीडिया वाले ने ही लगाया है। वो अचानक बाहर के बंदे को बुला के यहाँ लड़ाई करवाया है। हम तो लोग तो बाद में देखे कि 5, 10, 20 बंदे आके वहाँ पे अचानक से पीछे से ऐसे पकड़ रहा था, काटा ऐसे काटने में सब वाला जो होता है। लेकिन लड़ाई ये लड़की को छेड़ने का या थप्पड़ मारने का कोई मामला इसमें कितनी नहीं, ये सब कोई मामला नहीं है कि मैं बुलाते हूँ बंदा को लड़ाई करने के लिए। मेरे पास बंदे की कमी है। वो उन्होंने झूठा वो केस बनाने के लिए लड़की का नाम आगे किया कि लड़की का नाम आगे करेंगे तो केस जल्दी बनेगा। जो दीपक कुमार था उन्होंने दारू नहीं पी थी। रात को क्या कहते हैं वो कि तू, हमारे पास वीडियो है उनकी, वो कहते हैं जो खबरें चल रही, कहते हैं लड़की के साथ छेड़खानी होती है। शांत हो जाने के बाद तेरे को क्या मतलब बन रहा, तू आग उठा, तू भैये है, हाँ तू प्रवासी है, तुमको मारेंगे हम। तुमने 10 मिनट में कहां से बंदे बुला लिए। कुमार जो मीडिया वाले वो कहते हैं कि हम सबको बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, उजाड़ देंगे। तो ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 15-20 ਜਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਰਜਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2-4 मुंडे इकट्ठे होकर मारने लगे। हम लोग घर वाले के अंदर कर लिए। उसके बाद भी उससे माना नहीं। मोहल्ले वाले इकट्ठे करके मारने आए कि निकालो, मारते हैं। दीपक गल की हुई सी, तुसी उत्थे मौजूद सीगे, प्रत्यक्ष सीगे, की चक्कर की पिया सीगा? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 506 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਜਸਟ ਚਲੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਰਜਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਏ ਇਹ ਛਡਾਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਈਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉੱਥੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 15-20 ਜਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਵਸਈਆ ਲੱਪਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5-4 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ 35-40 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਛੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 4 5 ਭੈਣਾਂ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ लड़ाई कितना हुई है सारी? नाम की ਤੁਹਾਡਾ? हमारा मधु देवी। कहाँ रहते हैं आप? वे सुंदर नगर बाजीगर महल्ले। हाँ, की चक्कर की बहस रहती? सर यही हुई कि हमारी वो अमन नाम का मुंडा, उन्हें नशा किया था, उल्टियाँ किया, तो मेरे घर वाले ने उसे डांटा था। वो घर पर जब आया मूर्ति विसर्जन करके तो उन्हें मारने के लिए आया। 2 4 मुंडे इकट्ठे होकर मारने लगे। हम लोग घर वाले के अंदर कर लिए। उसके बाद भी उसे माना नहीं, मोहल्ले वाले इकट्ठे करके मारने आया कि निकालो मारते हैं। फिर हम लोग बोले कि नहीं मारना है, फिर मारने लगा। फिर हमारी कुड़ी ने बचाने गई अपनी डैडी को, मुंडे ने थप्पड़ मार दिया मेरी कुड़ी के। इसके वजह से ज़्यादा ही हमला बढ़ गई। दीपक पाजी मौके पे आ गए। मैंने बोले कि पाजी संभाल लो, क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर पाजी बोले कि कोई ना, मैंने देख लेते समझा लेते हैं। पाजी समझाने गए तो वो ईंटें पत्थर मारना शुरू कर दिया सबने। क्या लगता है कारण क्या है? ये खुंदक किस चीज़ की थी? खुंदक यही थी कि पहले ना अनुरंजन के बेटा को हमने केस किए थे। उसका बेटा ने बोलता कि हमारे भाई के क्यों केस करवाया, मैंने मारना ही मारना है तुम लोग को। ये अनुरंजन कौन है? अनुरंजन वहाँ पर बगल में है मेरे। अच्छा। हाँ, आशीतोष का बाप है। ये केस किस चीज़ का था? ये हमारी छोटी कुड़ी के छेड़ता था, उसका छोटा लड़का। ठीक है। इसके वजह से उन लोग ना ज्यादा हम पर खिलाफ हो गया। ऊपर से मोहल्ले में जो प्रधान बबलू बना है वो सोचा कि और इन लोग के हम और पिटवाएं और मरवाएं अच्छा। ज्यादा करके। सबसे बड़ा दुश्मनी बबलू की लेता है हम लोग से। बबलू क्यों दुश्मनी रखता है? उसकी ग्रुप में है ना सारे टीम। अच्छा, ग्रुपबाजी चलती हाँ, है? ग्रुपबाजी चलती है, गुटबाजी है। चक्कर ये है। अभी कितने लोग जख्मी हुए? आपकी ओर से कितने लोग घायल हैं? हमारे जख्म में 2 लोग हुए हैं, मगर सब भाग गए थे, इसलिए सब बचाव हो गया। ठीक है। तो अब आप क्या अपील करते हो पुलिस प्रशासन से? क्या अपील? प्रशासन के यही कहते हैं कि जो कार्रवाई बनती है वो करिए और आगे हमें सुरक्षा के लिए कुछ ध्यान दें। जी, ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਅਮਨ ਤੇ। ਅਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ? जी हाँ जी। ਅਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? हम लोग माता विसर्जन के लिए गए थे। जब वापसी में हम लोग आ रहे थे तो उस टाइम मैं गाड़ी में था और मेरे साथ वो सुनील, वो भी मेरे साथ ही थे। तो मेरे से उल्टी हो गया। उल्टी हुआ तो उन्होंने मेरे को पहले मेरे पे गुस्सा किया, फिर मैं थोड़ा सा उन पे टच हुआ तो वो मेरे को मारने लगे गाड़ी में। फिर मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था वहाँ पे। फिर जब मैं मोहल्ले आया तो मैं मम्मी को बताया, अपने ये सब बात घर पे बताया। फिर जब हम वहाँ पे गया मैं तो वो मेरे साथ मतलब मिसबिहेवियर करने लगा और मम्मी को धक्का देने लगा। तो फिर इस बात नहीं, आपने पहले लड़की को थप्पड़ मारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने मेरा जो भी हुआ, मैंने सुनील जो वो है उन्हीं से मेरा बहस हुआ और झगड़ा हुआ बस। उल्टी आपने उनके शरीर पे की? उनके शरीर पे नहीं, मैंने गाड़ी में किया। गाड़ी में की? गाड़ी में किया था। फिर साफ भी कर दिया था मेरे दोस्तों ने। हाँ। फिर भी वो गुस्सा किया और मुझे मारे। तो ये विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि ये प्रवासियों ने पंजाबियों पर हमला बोल दिया? ये सब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा बस जब मेरा झगड़ा हुआ उसके बाद मेरे को सब घर पे लाके। आपका वहाँ झगड़ा हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, आप वापिस सुनील के पास गए? नहीं, वापिस नहीं गए। मैं पूछताछ करने गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीता देवी। मैं पूछताछ करने गई, मेरा बेटा के क्यों मारा। अगर मेरा बेटा उल्टी कर दिया तो कपड़ा तो मैं धो दे दूंगी, धो के दे दूंगी। बोलता उल्टी कर दिया, क्यों मारा बेटा, उल्टी कर दिया। उल्टी करने का यही मतलब हुआ कि मार देगा।
नहीं ये तो मतलब वहाँ तक है कि उन दोनों की लड़ाई हुई, इनको मारा उन्होंने। हाँ मारा है ठीक वो, है। हाँ। फिर ये पंजाबियों का सिर खोलने का मामला कैसे आ गया? ये ईंट पत्थर बरसाने वाला मसला कैसे पंजाबियों का आ गया? ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। आप थे रात मौके पे? हाँ, हम मौके पे थे। हाँ जी, क्या हुआ था? तो वो जो न्यूज रिपोर्टर है ना, हाँ। उसने वो भोले भंडारी को अंदर से उकसाया। उसने उसको बोला मैं बंदे बुलाता हूँ, लड़ाई झगड़े यहाँ पे, मतलब उसने करने का प्लानिंग किया। मैंने उससे पूछा अंकल से जाके कि ये क्या हो रहा है, मतलब अंकल लड़ाई करोगे आप यहाँ पे बंदे बुला के? तो हमने बोला बाहर के बंदा क्यों बोला, जब आपस में हो गया सब खत्म तो। और उसके बाद उसके बंदे आए और हम लोग तो पता भी नहीं है किसका लड़ाई है, और वो किसी को भी मारने लग गए। कोई भी हाँ। किसी को मारने लगा? हाँ, किसी को भी मारने लग पड़े। वो लोग समझाने आया ही नहीं था, वो लोग आते ही हम लोग पे हमला कर दिया। मेरे को भी ईंट मार दिया था मुंह पे। जी मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल आगे हैं, पुलिस आ गया। जी राहुल, आप प्रत्यक्ष थे उस वक्त? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें जो हमला हुआ है उसमें सबसे पहला हाथ मेरे भाई पे ही उठाया गया था, जिससे कि हम ऑब्वियस सी बात है अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। उससे पहले जब हम आपने अमन से बात की, आपने अमन से बात की, अमन की बात मैंने ही भोले भंडारी कहते हैं हम सुनील चौरसिया जी को, तो हमसे उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बात वो तो बहुत अच्छी होती थी आज से पहले तक। अब जो हमने देखा उनके थ्रू क्या कि लड़के को मारा, हमने उनसे बात करी कि भाई आपने लड़के को क्यों मारा। उतने देर में ही जो न्यूज़ रिपोर्टर आप दीप जी को जानते होंगे, वो आ गए वहाँ पे, और मेरे भाई से उनका बोलने का तरीका बहुत ही अलग था। मतलब वो समझाने के तौर पे तो आए ही नहीं थे, उन्होंने आते ही ये लफ्ज़ उठाया कि भाई तू कौन है। और तू कौन है का मतलब किसी भी सिंपल लैंग्वेज में समझ नहीं आता है किसी को भी। तो उसने कहा कि भाई तू मेरे से बात कर, सुनील जी से मत बात कर। अब हमें नहीं पता कि वो उस मौका वारदात पे कहाँ से आए, क्योंकि हम में से तो कोई ना उनसे बात करता है, हम तो उनको पाजी पाजी कह के बुलाते हैं, और उनसे ज़्यादा हमारा बोलचाल भी नहीं है दीपक जी से। ठीक है, सुनील जी से हमारी बातचीत चल रही थी, दीपक जी आए, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी, पर उतने में ये बोलता तू बोल कैसे रहा है, मैं अभी बंदे बुलाऊं क्या। और उसके बाद जैसे ही हम अमन को लेके और सुनील जी को भी अपनी तरफ से साइड करके, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हमने बात को बढ़ानी है, क्योंकि हमारे ऐसे बंदे हैं, सभी ने अपने पूजा को समापन करके अपने अपने घर आना था। हम लगभग घर आए थे, हमारा डीजे यहाँ खड़ा हुआ था। डीजे खड़ा होने के बाद जो हम बाकी लोग तो घर आ चुके थे, जो 5-10 छोटे बच्चे या कुछ थे वो डीजे पे नाच रहे थे, और बहुत मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो 10 से 15 की तादाद में बंदों को लेके आ गया दीपक। ठीक है, अब उसके लिए मेरे से सम्मान की उम्मीद ना कीजिए दीपक जी के लिए। ठीक है, वो आदमी सम्मान के लायक नहीं है, वो गुंडा आदमी है, क्योंकि 10-15 बंदों किसी और मोहल्ले से 5 मिनट के अंदर लेके आना पॉसिबल नहीं है किसी आम आदमी के लिए। ये गुंडा ही कर सकता है कोई। ठीक है, वो बंदा जब आया उसने ना देखा ना उसके बंदों ने देखा कि किसको क्या कहना है, किससे क्या बात हुई है, उन्होंने सीधा हाथ उठाया। ठीक है, हमारा सेल्फ डिफेंस हमारे पास यही कहता था कि भाई अभी इनको किसी तरह से शांत करें, पीछे करें, पर वो सुनने के किसी के मूड में नहीं थे। जितना हमसे हो सका हमने उनको पीछे करा। उतने में ही सुनील जी के घर के ऊपर से पत्थर आने शुरू हुए, ईंटें पत्थर, और उसके बीच में ही हमने देखा कि एक उन्हीं के बंदे के सिर पे चोट लगी हुई है। ठीक है जी, उसके सिर पे चोट लगी हुई है, क्योंकि अब पत्थर हमारे पे आ रहे थे, तो हमारा भी कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस था। हम घर में घुसे, हमने अपनी जनानियों को अंदर किया। आप पूछ सकते हैं जनानियों के ऊपर भी कई पत्थर आए, जो कि लगे नहीं तो बहुत सीरियस हो सकती थी ये बात, और सीरियस हो सकती थी। ठीक है, अब रही पंजाबी और प्रवासियों की बात। प्रवासी और पंजाबी हम तो सरस्वती पूजा पंजाबियों का तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो ना मनाते हैं इसको, ना मानते हैं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, जब हमने पंजाबियों से कुछ करना ही नहीं था तो वहाँ पंजाबी आएंगे क्यों? कोई पंजाबी नहीं था हमारे साथ में। पंजाबी और प्रवासी की तो बात तब ना उठती, हम पंजाबियों के साथ मिलके कुछ कर रहे होते और वहाँ पे मुठभेड़ हो गई होती, या फिर हमने बोल दिया कि भाई तुम पंजाबी हो तो हम तुम्हें मारेंगे, हैं? वो तो बात थी ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि पंजाबी कोई था ही नहीं हमारे में से। अब रही सुनील और दीपक जी की बात, वो उन दोनों से आपको पता करना पड़ेगा कि वो दोनों कहाँ से मिलते हैं, किस चीज़ पे उनकी बातें होती हैं, और कौन सी चीज़ों पे आगे बात करते हैं वो। ठीक है राहुल, ठीक है।
सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है मैम आपका, क्या नाम है? बबीता। बबीता जी, आप उस वक्त लड़ाई में मौजूद थे? हाँ जी। क्या बात क्या हुई थी? वो मीडिया वाले जो है काला काला बोलते हैं, वो 5-6 बंदे को, मतलब और होगा पीछे हम नहीं जानते हैं, 5-6 बंदे को बुला के ले आए और बाद में लड़ाई ऐसे इसी तरह करने लगा। हम सब इधर वाले बंदे से कोई मतलब नहीं, से बजा बज रहा था तो हम सब देख रहे थे, वो अचानक लड़ाई करना शुरू कर दिया। बाहर से बंदे आए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, आप थे लड़ाई में मौजूद? हाँ। क्या बात क्या हुई थी? सारा झगड़ा वो मीडिया वाले ने ही लगाया है, वो अचानक बाहर के बंदे को बुला के यहाँ लड़ाई करवाया है। जब मोहल्ले में लड़ाई हुआ तो बाहर के बंदे का आने का कोई मतलब ही नहीं हो। आपस में मोहल्ले में लड़ाई हुआ तो आपस में समझौता कराओ, बाहर के बंदे को बुला के यहाँ मार करवाया और उल्टा धमकी देता है कि हम लोग बर्बाद कर देंगे। अच्छा, क्या नाम जी मैम आपका, क्या नाम है? मेरा अनुपम नाम है। अनुपम जी, आप थे लड़ाई में मौजूद थे? हाँ, क्या बात भी क्या हुई थी। थी बताइए। लड़ाई तो बच्चे सब में, मतलब कि हमारे तो डीजे चल रहा था, बच्चे सब उसमें नाच रहे थे। हम तो लोग तो बाद में देखे कि 5, 10, 20 बंदे आके वहाँ पे अचानक से पीछे से ऐसे पकड़ रहा था। लड़के का कॉलर पकड़ लिया, पीछे से ऐसे बाल पकड़ के मारने लगा उसको थप्पड़ पले। फिर पीछे देखे कि वो अपना सामान उमान भी लेकर आया हुआ था, उसने मारना शुरू कर दिया बिना सामान। ये सामान किस तरह का सामान था? जैसे कि उसके पास वो था काटा, ऐसे काटने में सब वाला जो होता है, डंडा भी था लोहे वाला जो होता है, वो तलवार जैसा, वो सब था उसके पास में। उसने तो अचानक से ऐसे मारने लगा जो कोई बात ही ना हुआ हो। उसने बंदा बुला के लेकर आया तब ना लड़ाई होना थी, करने लगा, अचानक से मारना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे जब गए उसको समझाने के लिए कि भैया ऐसे ना करो, हम लोग तो आपस में रहने वाले हैं यहाँ के हैं, तो मोहल्ले में ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। दूसरे मोहल्ले का बंदा हमारे पास क्या कर रहा है वो आके। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? तनुजा भारती। आप थे रात को लड़ाई में? हाँ जी। क्या बात क्या हुई थी? बात हुई थी बच्चे सब में, तो लड़ाई हुई थी सर, लेकिन लड़ाई ये लड़की को छेड़ने का या थप्पड़ मारने का कोई मामला इसमें कितनी नहीं, ये सब कोई मामला नहीं है, ये सब बच्चे का है। नहीं, आप भी एक लड़की हो, देखो सच मत छिपाना। ये थप्पड़ मारने का, लड़की के साथ छेड़खानी करने का ये मामला क्या है? नहीं, ये सब कहीं कुछ नहीं है। ये बदनामी होगा करने का मोहल्ले वाले का है कि हाँ ऐसे ऐसे बात है और कुछ नहीं। लेकिन उन लोगों का, जैसे हम राजेश को पूछे कि यहाँ पे बंदे खड़े हैं क्या बात है, तो राजेश बोला आप जाइए उधर, हम आते हैं पूछ के। भोले भंडारी को पूछने गया तो वो कहता है कि मैं बुलाते हूँ बंदा को लड़ाई करने के लिए, मेरे पास बंदे की कमी है, यही वो बोला। इतने में आया तो सब मारपीट करने लगा। लेकिन हम देखे थे वो व्हाइट कलर का कार था, उसमें 7-8 बंदे थे भरे हुए, और बाद में पीछे से भी आया। आप थे लड़ाई में? क्या नाम है आपका? जी हाँ, मैं राहुल की वाइफ काजल हूँ। काजल, आप थे लड़ाई के बाद? जी हाँ। क्या मामला क्या हुआ था? ये बताना पहले कि लड़की के साथ छेड़खानी का मामला क्या है, ये बात कैसे बाहर आ रही है? जी, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था, छेड़खानी वाली कोई बात ही नहीं हुई थी। ये लड़की को थप्पड़ मारा गया? नहीं। क्या बात नहीं हुई, अब बताइए। अब वो हमारे घर से गए थे बात करने के लिए कि लड़के को क्यों मारा गया, बस उतने में ये पता नहीं मुठभेड़ सी हो गई, एकदम से पता ही नहीं लगा। वो कह रहे लड़की को मारा, ऐसी कोई बात ही नहीं आई सामने। लड़की वाली तो कोई बात, और वो उन्होंने झूठा वो केस बनाने के लिए लड़की का नाम आगे किया कि लड़की का नाम आगे करेंगे तो केस जल्दी बनेगा। ये लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई थी लड़के की। हाँ। कि इसको बच्चों की लड़ाई थी कि मेरे ऊपर उल्टी की, बस इतनी छोटी बात का इन्होंने। हाँ, रमजीत कुमार पूरा? हाँ जी। तो आप पुष्पराज के एक नक्शे कदम पर चलते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं। क्या बात क्या हुई थी रात को? कहते प्रवासियों ने एक दहशत बना दी है, पंजाबियों को मारने लग पड़े हैं। सर प्रवासी दहशत बनाते तो उसके महल्ले में जाके न बनाते, मतलब वो पंजाबी हमारे महल्ले में आके हम ही को दहशत बना रहे, मार पीट रहे और कह रहे हैं कि प्रवासी दहशत कर रहे। कहते हैं लड़की छेड़ते हैं, कहते हैं लड़की। बताइए आप, क्या लोड थी 10 बजे रात को 5-7 बंदे आने की? गाड़ी में क्या लोड थी? जो दीपक कुमार था उन्होंने दारू नहीं पी थी रात को। क्या कहते हैं वो कि तू गाली देके कहते तुझे की कर लूंगे, गाली नहीं, एक बात बोलते हैं गाली देके। वो कहला कि तो एक बात बता, कोई आपके माँ बहन को गाली देगा तो वो कौन सहेगा? उन्होंने कहा आप बुलाओ जिसको बुलाना है, हमने भी कहा बुला लीजिए आप जिसको बुला। उन्होंने कॉल किया, 10 मिनट के अंदर 5-7 बंदे गाड़ी में बैठ गए। हमारे पास वीडियो है उनकी, जो गड्डी में आए हैं उनकी वीडियो है। आते मंतर हमारे माँ बहनों पे अटैक कर दिया। हम अपना प्रोग्राम कर रहे, बाल बच्चे नाच रहे, उनके पे अटैक करने के क्या? आप आए हैं बात करने के लिए, बात कीजिए, ये कोई मतलब थोड़ी बनता है आप अटैक करेंगे। आते उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक उन्होंने, जब हम उनको भाई पाजी हाथ जोड़ के रोकने के लिए गए, ऊपर से ईंटें आ गई।
ईंटें शुक्र कीजिए हमारे पे नहीं लगी, उन्हीं एक बंदे पे लग गई, जिस कारण वो घायल हो गए। ये उनकी ईंट उनको लगी उनकी है, लगी है, उनको 3 मंजिला से ईंट लगी है तो वो घायल हुए। जो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने बिहारियों ने ईंट मार दी पंजाबियों को। जो इसमें एक बात बताइए, आप बिहारी महल्ले किस लिए गए? ना आप उनके साथ हैं ना हम उनका आपके साथ हैं। कोई प्रोग्राम है जो बिहारी कर रहे हैं वो आपको थोड़ी बुला रहे आप आइए, आप आए, चलो धर्म का काम है, आप आते हैं, लेकिन हम आपको लेने नहीं गए। आप किसी और मोहल्ले से रात को 10 बजे आके अटैक करते, ये कोई मतलब बनता है? विक्रम जी वो कह रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, कह रहे हैं लड़की के साथ छेड़खानी होती है। सर सुन लीजिए, वो कहते हैं जो खबरें चल रही, कहते हैं लड़की के साथ छेड़खानी होती है, समझाने के लिए पंजाबी जाते हैं तो उन पर पत्थर। मेन बात यह है सर, समझाने के लिए पंजाबी एक नहीं, जो समझाने के लिए आया है वो सुंदर नगर निवासी है दीपक कुमार, वो उनसे राशन लेता है। ये बात उन्होंने मीडिया में कही हुई है कि हम इनसे राशन लेते। वो रात को पी के आया था, तो हम सब आपस में, चलो बड़े बुजुर्ग थे, उनसे मामला शांत करा लिया हमने। शांत हो जाने के बाद तेरे को क्या मतलब बन रहा, तू आग उठा, तू भैये है, हाँ तू प्रवासी है, तुमको मारेंगे हम। तुमने 10 मिनट में कहाँ से बंदे बुला लिए? 10 मिनट में बंदे बुला के तो हमारे पे अटैक करवाने को फिर रहा तो तभी सर ये ऐसे लड़ाई हुई, ऐसे थोड़ी बात है। लड़की छेड़ने की बात इसलिए आपके सामने इन्होंने रखी है, इनके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पूरे महल्ले के आदमी, जो सुंदरनगर के जितने हमारे 40 घर हैं वो हमारे साथ हैं। किसी से पूछ सकते हैं कोई लड़की छेड़ी, हम अपनी बेटियों को छेड़ेंगे? इतने गिर गए हम, हमारे घर में तो बहू बेटी है, ये थोड़ी इतने गिर गए हम अपनी बेटियों को छेड़ेंगे? झूठ बोल के हमारा फंसा रहा है। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे जो ये ईंट जो लगी है, जिसका सिर खुला है, जिसका सिर फुटा है, ये ईंट उनके द्वारा बरसाई गई, उनको लगी है। जब हम उनको समझाने के लिए गए, उनके द्वार पे गए, पाजी तुसी खाते लिया है, ਤੁਹਾਡਾ कोई रोड़ा? कहते नहीं रोड़ा। फिर तो सर तुसी सानू क्यों कुटन ला पे, साडी मां भैन न्याणे ने कैसे क्यों कुट मारने लगे? उधरों एक ईंट आ गई, ईंट आई मेरे को नहीं लगी, मैं पीछे हट गया, उसके पे लग गई, जिस कारण वो घायल हुआ। उसके बाद उनके आदमियों ने अटैक कर दिया। सेल्फ डिफेंस हमने भी कुछ बचाने के लिए करना ही है जी, वो तो हर किसी ने करना है। सर इधर आ जाए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार। बबलू जी, आप रात को लड़ाई में मौजूद थे? मैं घर में बैठा था, बच्चे सब जो कर रहा था। उसके बाद कुछ देर के बाद आया कि मार हो गया, तो मैं घर से निकला, कहाँ भाई मार कैसे हो गया? तो जाके हम लोग जो हो रहा था, लड़की को छेड़ दिया, लड़की को छेड़ दिया। तो मैं पूछा क्या बात है, कहता ऐसे हो गया। लड़की का छेड़ने का मतलब वहाँ पे जैसे 2 बंदे में लड़ाई हो रहा था ना, वो सुनील चौरसिया जो वो उससे झड़प हो रहा था, तो उसी को छुड़ाने के लिए उसकी लड़की गई, तब बाई चांस हाथ नहीं, वो झटका लगा, तो वो कहता है कि लड़की को मार दिया, छेड़ दिया। और ये जितने भी आग लगा है सारे आग। थोड़ा सा हम शब्दों पर संयम रखें, ये मीडिया है, इसे भी दुनिया ने देखना है। ये जो दीपक कुमार जो मीडिया वाले, वो कहते हैं कि हम सबको बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, उजाड़ देंगे। अच्छा बबलू जी, एक चीज स्पष्ट कीजिए कि जो ईंट लगी है, जो खबरें सुबह से चल रही है, वो जो ईंट चली है, वो सबसे पहला ईंट वो क्या कहते हैं सुनील चौरसिया के छत के ऊपर से आया है, और उसी से वो उसका बंदा घायल। वो बंदा नहीं तो देखिए आप, उसका सीसी कैमरा सारे बंदा वहाँ पे खड़ा था। उधर से जब वो आने लगा, वो ईंट वहाँ से जब चला, उसके पीछे वहाँ पे लगा और बंदा गिरा हुआ है वहाँ पे। ये प्रवासी और पंजाबी की कोई लड़ाई नहीं, इसमें हम सब प्रवासी है। वो जो सुनील कुमार चौरसिया, वो भी तो प्रवासी है। वो जो कहते हैं कि पंजाबी कुरी है ही नहीं यहाँ पे, तो पंजाबी और भैया का तो कोई रोल ही नहीं है, हम सब भैये हैं। ये एक पक्ष है जिस पर यह आरोप था। अमन आपका नाम ही ये अमन है, और ये अमन के साथ सारे यहाँ मौजूद वो लोग हैं जो रात की लड़ाई में मौजूद थे। आप लोग इधर आ जाइए। ये सारे वो चेहरे हैं जो रात को यहाँ लड़ाई में मौजूद थे, और जो हमारे ही मीडिया के साथियों के द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है कि बिहारियों ने, उन्हें प्रवासी का नाम दिया जा रहा है कि प्रवासियों ने। एक चीज़ तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि यहाँ प्रवासी शब्द जो भारत में वो नहीं है। भारत में सब भारतीय हैं, नागरिक हैं। देखिए पंजाब के लोग बिहार में भी रह रहे हैं, शायद इन लोगों को नहीं पता है। दूसरी बात क्या है, बिहार के लोग पंजाब में रह रहे हैं, अच्छा एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रह रहे हैं। तो ये तो पहले तो हम अपने समाज को बांटने का प्रयास ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये बाना है कैमरे के आगे कि ईंट हमने नहीं चलाई है, ईंट छत के ऊपर से चली है। और यहाँ बड़ी बात जो है, लड़की के साथ छेड़खानी का मामला, जो कि गंभीर मुद्दा नजर आता है, पर अभी तक इस पक्ष की ओर से ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आ रहा, जो कि बल्क में लोग गवाह हैं यहाँ पे, और जिनमें हमने बड़ी गिनती में हमने महिलाओं की गवाही जो है वो यहाँ रिकॉर्ड की है।
दूसरे पक्ष की अगर बात जानने की कोशिश करें तो उसके लिए जुड़े रहें। और तीसरा पक्ष है, सर आपकी ओर से कोई पुलिस कंप्लेंट की गई? हमने सिर्फ पुलिस वालों से दरखास्त दी है कि हमारे साथ रात को हमारे मोहल्ले में ही आके कुछ नंबर पे फोन भी किए तो उसमें पुलिस आई भी थी। पुलिस मौके पे आके सब कुछ देख के गया। उसने कहा सब कुछ ठीक है, आप लोग घर चल जाओ, आगे कुछ होता है तो हमको फोन करना, उसके बाद हम देखेंगे। मौके पे पुलिस आई? हाँ, मौके पुलिस आई थी। उसके बाद उसने कहा कि उसने बोला कि सुबह आप लोग चौकी आना, चौकी जो कागजी कार्रवाई होता है वो कागजी कार्रवाई करके उसके बाद फिर जो होगा हम देखेंगे। आपने चौकी? हाँ, उन्होंने कहा है कि 1.5 घंटे, उन्होंने न्यूज में कहा 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। सर 10 मिनट में पुलिस आई है। विश्वास नहीं तो मतलब न्यूज उनका देखिएगा ना, उन्होंने कहा 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। सर 10 मिनट में पुलिस आई, हमने कॉल किया तो नहीं, पुलिस जब आई तो उसके कैमरे में तो टाइम रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, टाइम रिकॉर्ड है। सर उन्होंने भी हमारे जो बयान लिखे हैं वो भी रिकॉर्ड है उनके पास। तो अब आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस को अभी किया, जो बाकी आगे जो होंगे अब वो देखेंगे क्या होता है। बाकी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अगर आगे कुछ होता है, आगे कुछ होता है तो हमको आप बताना। सर क्या अपील करना चाहेंगे? हम प्रशासन से बाहर नहीं है सर। ये जो आतंकवाद यहाँ फैला रहे हैं बाहर से, यहाँ बंदे ये बंद होनी चाहिए। और सबसे पहले सुनील चौरसिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितना भी कुछ हुआ है ये क्या कहता है, सुनील चौरसिया के चलते हुआ है। इसने बंदे को बोला कभी मेरा बंदा आ रहा है, दिखा दूंगा कि किसमें कितना दम है। इन्होंने ही बुलाया था सुनील चौरसिया ने। ये मामला अभी तक सामने आ रहा है और अब क्या है कि इसके और गहराई तक जानकारी के लिए जुड़े रहें। परंतु यहाँ एक चीज़ स्पष्ट है कि बिहारी और पंजाबी की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो है एक छोटे से परिवार, मैं अगर कह दूँ समाज की है, और जिसमें अगर किसी को पत्थर लगा है तो इसको थोड़ा प्रकाशित और प्रसारित अलग ढंग से किया जा रहा है, जो कि समाज के लिए खतरनाक है। क्योंकि लिटिल नॉलेज इज बिग बॉम्ब, नीम हकीम खतरे जान। तो इस चीज़ को हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। कैमरा जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट, होशियारपुर।